Anyone? Sets. Right. So we are going to see what are the operations on sets today. ठीक है? Online students, my voice is clear now? Yes, Yes, ma'am. ma'am, it is clear. Okay. Okay. So, okay, next slide. Okay. So Venn diagrams, it is nothing. It's just way of representing sets. ठीक है? So you are able to see the slides? No? How to zoom? Hmm. Huh? Sparsh, can you zoom this slide a little bit? Yeah. Is it okay? No? Not okay. It's visible? Hmm? Yes, ma'am. ऐसे visible है पीछे वाले बच्चे नहीं visible है लाइट डिम करो भाई कोई वहां से लाइट ऑफ करो इधर वाली करना बस पीछे की ऑन रहने देना कहाँ से होगी पीछे वाली ऑन रहने देना हो जाएगा अभी ओ ठीक है अभी दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को लास्ट सीट नहीं दिख रहा है पीछे वाली लाइट ऑन कर दो एक तो वो कर रही है हेल्प करो कोई और उसे कह रहे हो फैन ऑफ कर दिया हाँ वो पीछे वाली ऑन कर देना जो भी आपने चलो अभी लास्ट वाले स्टूडेंट्स को विजिबल है कि नहीं तो बस ठीक है आ जाओ फिर ये बच्चा अच्छा है आ जाओ आ जाओ व्हाट इज योर नेम सॉरी ओके यश ओके वेरी गुड चलो ओके स्पर्श वेन डायग्राम्स ठीक है तो a set can be visualized using Venn diagrams. In a Venn diagram, a rectangle shows the universal set. देखो जो रेक्टेंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट मैंने उस दिन बताया था ठीक है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेट सो ए बी सी दिस इज अ सेट ठीक एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ठीक whenever we are talking about a set we always have a universal set associated with it ठीक है so Venn diagrams is nothing it's just a way of representing a set v is equals to a comma b comma c so v is a set having three elements a b and c ठीक है so we are representing it using
Venn diagram. ठीक है, next slide. Yes, subset. So subset is having number of elements which are taken from its senior, its superset, right? So subset is a set A is said to be subset of B if and only if every element of A is also an element of B. ठीक है, we use A is a subset of B, so this symbol is called subset. A is a subset of B to indicate A is a subset of B. ठीक है. Now empty set. So empty set is always a subset of S. Empty set is a subset of any set. ठीक है. Then any set S is a subset of itself. सब कोई भी सेट उसका खुद का सबसेट होगा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो S में है वो उसके सबसेट में भी होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. प्रॉपर सबसेट. So there is only one thing that is not there in the proper subset. वो ये है कि दो सेट्स A और B, हम A को हम सबसेट B का बोल सकते हैं जब A के अंदर सारे एलिमेंट्स हो B के. ठीक है. प्रॉपर सबसेट में दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B में इक्वल नहीं होने चाहिए. किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके. So a set A is said to be proper subset of B if and only if A is a subset of B and A is not equal to B. ठीक है. So we denote that A is a proper subset of B with a notation. This is इसमें equal to sign नहीं है, so this is proper subset. ठीक है. Okay, next line. तो set operations. अब सेट में यूनियन इंटरसेक्शन जैसे कि आपने शायद पढ़ा भी होगा. तो यूनियन, व्हाट इज यूनियन? जब हम दो सेट्स के एलिमेंट कंबाइन करके लिखते हैं. ठीक है. सो ए सेट A and B, let A and B be two sets and the union of A and B denoted by A union B is a set that contains those elements that are either in A or in B or in both. ठीक है. So this is डायग्राम जिसमें कलर्ड पोर्शन है जो डायग्राम में दिख रहा है. ठीक है. दैट इज यूनियन पार्ट. एक सेट है, बी एक सेट है और यूनियन पार्ट में दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे. कॉमन वाले भी आ जाएंगे. ठीक है. अब कॉमन वाले दो बार आ जाएंगे क्योंकि ए में भी है और बी में भी है. ठीक है. तो दो बार आ जाएंगे तो हम उसकी काउंटिंग दो नहीं रखेंगे, वन ही रखेंगे क्योंकि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं. ठीक है. देन वी हैव इंटरसेक्शन. So A and B sets, intersection of A and B is denoted by this intersection symbol. ठीक है. And it contains those elements that are in both A as well as in B. So नीचे example is given. Example, set A is having elements 1, 2, 3, 6 and B is having 2, 4, 6, 9. So A union B would be having 1, 2, 3, 4, 6, 9. They have not written 6 twice. They have also not written those any element that is occurring twice. ठीक है. Then in intersection, so A is having 1, 2, 3, 6, B is having 2, 4, 6, 9 and A intersection B would be having 2, 6. ठीक है. Intersection that element which is coming in both of the sets. ठीक है. Okay, next line. Set difference. So difference is nothing, A minus B. ठीक है. So let A and B be sets and difference of A and B is denoted by the set containing those elements that are in A but not in B. So you need to subtract common elements from A. So if I am doing A minus B, so all the elements of A minus intersection of A and B. And if I am doing B minus A, so all the elements of B minus A intersection B. ठीक है. So the difference of A and B is given by, so now A minus B is equals to X such that X belongs to A and X does not belong to B. So this second line is the property form of whatever we are saying, right? So this is the property form, X such that X belongs to A but X should not belong to B, because if it's belonging to A and B, that means intersection, right? So, so colored portion in this is left side of set A, subtracting the part which is A intersection B. So example, A is equals to 1, 2, 3, 5, 7. B is equals to 1, 5, 6, 8.
तो A minus B would be subtracting the elements of A intersection B. ठीक है, so that is 2 3 7. So next slide. So anything that is not clear, online and offline students? Simple. Okay, then complement of a set. Yeah, anyone is saying something? So last seat आप चारों, सबसे लास्ट सीट खड़े हो जाओ चारों, लास्ट सीट बिल्कुल, आपसे पीछे कोई नहीं है, खड़े हो जाओ लास्ट सीट. सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इससे पहले, नहीं सेट ऑपरेशंस तो पूरी पीपीटी है. अभी से पहले कौन सी स्लाइड डिस्कस कर रहे थे हम? कौन कह रहा है प्रॉपर सबसेट? अच्छा, और आप क्या कहते हो? प्रॉपर सबसेट डिस्कस कर रहे थे. अच्छा, और आप क्या कहते हो? पता नहीं. और आप? वेन डायग्राम, वो तो फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था. और प्रॉपर सबसेट. अच्छा, कोई आगे वाला बच्चा बताएगा क्या था पिछली वाली स्लाइड में? सेट डिफरेंस, सब बता रहे हैं. Okay. So now complement of a set. So let U be the universal set of all objects under consideration. Universal set I have already told you. ठीक है, बैठने को कहा मैंने. यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट. खड़े होकर कर लो बातें, कोई इशू नहीं है. सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय, यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, मे बी नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुछ भी होगा. ठीक है, और सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे. तो जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं उसमें से यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो जब भी आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको नहीं बताया जाएगा कि यूनिवर्सल सेट उसमें है. ठीक है, आपको सिंपली बता दिया जाएगा कि आप एक सेट दिया है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, कोई भी चीज़ निकालनी है, आपको यूनिवर्सल सेट मेंशन नहीं किया जाएगा. वो आपको माइंड में खुद से रखना है कि हर एक सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता ही है. ठीक है, सो U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे हैव गिवन. ठीक है, तो ये जो सेट है A, इसका केवल यूनिवर्सल सेट जो यहाँ पे दिया है वही है. ठीक है, दैट वुड नॉट बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिकॉज दे हैव स्पेसिफिकली डिफाइंड इट. राइट, so A is equals to 1 3 5 7. Now A minus, so what would be the final complement? So that would be remaining elements other than 1 3 5 7. So that would be 2 4 6 8. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड. सिमेट्रिक डिफरेंस. सो एक्सॉर सुना होगा सबने, तो सिमेट्रिक डिफरेंस वुड बी सिमिलर टू एक्सॉर. So symmetric difference of two sets A and B is the set of all elements which belong to exactly one of the two original sets. ठीक है, either to A or to B. So that means A union B minus A intersection B. ठीक है, so that is symmetric difference. So A is equals to ABC and B is equals to EFG. Now symmetric difference, if you want to find out, so because nothing is common, so that would be null, intersection would be null, and union would be ABCEFG. ठीक है, so symmetric difference would be ABCEFG. So any element that is occurring once in both the sets, so that is symmetric difference. ठीक है, next slide. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सिंपल ऑपरेशंस हैं, सिंपल मैथ्स सब लोग पढ़ के ही आए हैं. देन मेंबरशिप रिलेशन. नाउ आपके ट्यूट में जो क्वेश्चंस हैं जस्ट गो थ्रू देम. ठीक है, उसमें कोई इशू है तो फिर अपना ट्यूटोरियल में डिस्कस करिए. ठीक है, इन स्लाइड्स में भी, स्लाइड्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड राइट नाउ, और उसमें स्लाइड्स में भी यू आर गिवन बैक क्वेश्चंस, तो वो बैक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए. ठीक है, और कोई इशू है तो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे. पिछले मॉड्यूल 1 में भी थे, सॉरी लेक्चर 1 में, तो वो भी आप एक बार गो थ्रू करना क्वेश्चंस, और ये वाले भी. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फाइनल आएंगे. लेट A be the set and X be some object. So notation X belongs to A. So membership means X is a member of A or X is an element of A, or
x belongs to a, one and the same thing. ठीक है, and x does not belong to a, notation is given. X does not belong to a. ठीक है, x belong to a notation is given and x does not belong to a notation is also given. Now v is equals to a, e, I, o, u. So e belongs to v, yes, because e lies in set v, and b does not belong to v because it's not there in the set b. V, sorry. ठीक है, okay, next slide. Equality. So when two sets are called equal, when number of elements in A is equal to number of elements in B. Same elements should be there in both the sets. Okay? So the two sets A and B are equal, are denoted by A is equals to B if they have the same elements. So otherwise A is not equal to B. Just have a look at the symbol. Okay? Equal to, not equal to. Okay? Example, the set A of odd positive integers is not equal to set B of prime numbers. Then set of odd integers between 4 and 8 is equal to set of prime numbers between 4 and 8. ठीक है, 4 and 8 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वही नंबर ऑड इंटीजर्स हैं बिटवीन 4 and 8. कौन कौन से हैं? 5 and 7. ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड. प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. अभी तक किसी को कोई डाउट? ओके. The idea of inclusion and exclusion is ignore the duplications at first and include all the objects which are in it. ठीक है, duplications को हमें remove करना है, फिलहाल ignore करना है, then exclude the duplications and then finally the result has no repetitions and no losses. तो जब हम A union B करते हैं, ठीक है, so we will see formula also. A union B करेंगे तो हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो है इंटरसेक्शन में आ जाते हैं. ठीक है, तो वो डुप्लीकेशंस हो गए तो उन्हें हम रिमूव करेंगे. तो जब भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की बात होती है, वी हैव अ फॉर्मूला. ठीक है, ए यूनियन बी. सो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला. एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 और 3 इन 1 to 20. सो 1 to 20 के बीच में नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3. तो 2 4 6 8 ये जो है मल्टीपल्स ऑफ 2 है, एंड देन 3 6 9 12 15 these are multiples of 3. ठीक है, अब काउंट किया तो 10 थे, ये काउंट किया तो 6 थे. 10 plus 6 16. नाउ इनमें से कौन से कॉमन है? कॉमन आर 6, राइट. तो कुछ कॉमन थे इन दोनों में से, तो वो हमने सबट्रैक्ट किए. तो 16 minus 3 that is 13. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज फाइनल फॉर्मूला. सो A union B is equals to A plus B minus A intersection B. सो A क्या था हमारा? 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 के जो नंबर्स थे, और B हमारा क्या था? मल्टीपल्स ऑफ 3 के जो नंबर्स थे. ठीक है, एंड A इंटरसेक्शन B क्या था? जो दोनों के, जो 6 के मल्टीपल्स थे. ठीक है, वो सबट्रैक्ट किए. सो दैट इज फॉर 2 sets A and B. Now second formula is for 3, A union B union C, that is equals to A plus B plus C minus A intersection B, A intersection C and B intersection C plus so every time you add one variable, you do pluses then minuses then pluses then minuses. So that is the formula. ठीक है, for 4 sets that is again A union B union C union D. So you will add first numbers then subtract A intersection B, B intersection C and so on, and then there is some, you add A intersection. So you add finally A intersection B intersection C, A intersection B intersection D, so and so on. So plus minus. So this way it will go. ठीक है, so आपके पास 3 सेट से ज़्यादा नहीं आएगा जनरली. ठीक है, so next slide example. So this is generalized formula for n variables. मतलब n आपके पास सेट्स हैं तो उसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना है, तो आप कैसे लगाओ? सो दिस इज योर जनरलाइज फॉर्मूला. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. तो फाइनल स्लाइड. ओके, सो हमें एक क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस यू विल गेट. So calculate the number of multiples of 3 or 5 between 1 to 100. So 1 to 500, sorry. So you need to find out all the multiples of 3 or 5. ठीक है, now
क्योंकि अगर आप 3 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लो फिर आप 5 के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लो तो कुछ आपके पास ऐसे भी मल्टीपल्स रहेंगे जो दोनों के रहेंगे, ठीक है। तो आप काउंटिंग में, इसीलिए हम ये प्रिंसिपल वो जो डुप्लीकेसी है उसको रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं कि भाई हमें क्योंकि हमने 3 के टाइम पे वो 5 वाले ऑल्सो काउंट कर लिए थे, तो अब हम दोबारा काउंट ना करें, तो इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटरसेक्शन भी, ठीक है ना। तो अब हमें दिया है क्वेश्चन में, अब हम निकालेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। कितने एलिमेंट्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं और कितने हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो ए में 500 डिवाइडेड बाय 3 तो निकल जाएगा, क्योंकि एवरी थर्ड टर्म जो आएगा 1 to 500 के बीच में वो 3 से डिवाइड होता होगा सिंपली, ठीक है। तो हम उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर हम बी सेट के लिए 500 बाय 5 करेंगे, क्यों? क्योंकि एवरी फिफ्थ टर्म जो होगा वो 5 से डिवाइड होता होगा सिंपली। तो 500 बाय 5 इज 100, 500 बाय 3 इज 166 एंड देन हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए आ गया। कुछ टर्म्स जो 3 से डिवाइड होते थे वो 166 थे, जो टर्म्स 5 से डिवाइड होते थे वो 100 थे। अब ऐसे कुछ होंगे जो दोनों से डिवाइड होते होंगे, वो हमने 3 वाले में ऑलरेडी काउंट कर लिए, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 क्रॉस 5 दैट इज 15 से वो डिवाइड होता होगा नंबर, राइट। सो उसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी 33। तो अब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर इज 166 प्लस 100 माइनस 33 यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड। किसी को कोई डाउट है? सिंपल सिंपल है अभी तक सब? ओके, सो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। A large software development company employs 100 computer programmers, ठीक है। 100 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट आपके पास दे दिया उन्होंने, 100 है, ठीक है। ऑफ देम 45 knows जावा, 30 knows सी हैश एंड 20 knows पाइथन। सो ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। ए इज 45, बी इज 30 एंड सी इज, ए बी सी मत करो इसको, जे सी और पी कर लो। तो जे इज 45, 3 सेट्स बना लो। सो जे इज 45, सी इज 30 एंड पी इज 20, ठीक है। अब इसके बाद हमें दे दिया 1 इन जावा एंड पाइथन। सो एक प्रोग्रामर को जावा भी आती थी और पाइथन भी आता था, ठीक है। दूसरे प्रोग्रामर को 5 इन सी हैश एंड पाइथन, 5 को सी हैश भी आता था और पाइथन भी आता था, ठीक है। और केवल एक को तीनों आते थे, ठीक है। तीनों मतलब जे इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी, वो वैल्यू भी दे दी, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स दैट आर नॉट प्रोफिशिएंट इन। अब आपको पहले तो ये बताना है कि कौन सा नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज उन्हें आती ही थी, ठीक है। एक लैंग्वेज तो आती ही थी, तो वो काउंट करना है। तो अभी ए यूनियन बी यूनियन सी आप निकालो। फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो वी कैन मूव टू प्रीवियस स्लाइड। अभी पहले नोट दिस डाउन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो आंसर बताओ क्या आएगा, बेसिकली जे यूनियन सी यूनियन पी का। बैठ जाओ, लास्ट सीट, इट्स ओके, बैठ जाओ। हम्म, ये इतना बड़ा क्लासरूम इसलिए अलॉट किया गया है ताकि आप लोग डिस्टेंस पे बैठें, फिर भी सब लोग ऐसे साथ में बैठ गए हैं। व्हाट इज द यूज? नेक्स्ट टाइम से मुझे ये चीज रिपीट ना करनी पड़े, एक सीट का आप गैप करके तभी बैठेंगे, ठीक है। सो आंसर बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैम 84। 84, मैम 84। 24, ओके। ऑफलाइन 84,
Ma'am, 84 is the union of all three. ओके, पीछे वाले स्टूडेंट्स इधर सॉल्व कर पा रहे हो गया? 16 ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 16 बता रहे हो? ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स दैट आर नॉट प्रोफिशिएंट इन एनी ऑफ द, देखो अभी हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि किसी एक में भी प्रोफिशिएंट ना हो, नॉट लिखा है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। चलो स्पर्श, मूव योर स्लाइड्स। या सो वैल्यूज देख लो, u इज इक्वल टू 100, ठीक है ना, ये सबकी JCP, ठीक है ना? स्पर्श नेक्स्ट, हाँ ठीक है। सो आंसर इज 16। क्यों? क्योंकि J यूनियन C यूनियन P जो आया कैलकुलेट होके, वो सारे वो प्रोग्रामर्स थे जिन्हें कोई तो लैंग्वेज आती ही थी, एक एक लैंग्वेज आती थी, है ना, जिन्हें वो लैंग्वेज आती थी। अब उसमें हम कॉम्प्लीमेंट इसलिए लेंगे, 100 टोटल नंबर थे हमारे पास, जिसमें से हमने कैलकुलेट किया कि 84 को आती थी, दैट मीन 16 को एक भी नहीं आती थी। 16 वो वाले नंबर है जिसको एक भी लैंग्वेज नहीं आती थी, ठीक है। सो वी हैड टू फाइंड आउट द प्रोग्रामर्स दैट आर नॉट प्रोफिशिएंट इन एनी ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, ठीक है, इसीलिए हमने कॉम्प्लीमेंट लिया। सो आंसर इज 16, ठीक है। सो दिस वाज लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट। तो दीज आर द एक्सरसाइजेस, होमवर्क, ठीक है। इसको अभी क्लास में बैठ के सॉल्व करो टिल द टाइम आई टेक योर अटेंडेंस। और इसके अलावा किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। स्पर्श, ये स्क्रीन शेयर ऑन रहने देना, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, थैंक यू। आप लोग क्वेश्चंस नोट कर रहे हो? फोटो ले लिए? चलो, आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स, नोट कर लो, उसके बाद विल टेक अटेंडेंस बिकॉज स्क्रीन स्लाइड्स क्लासरूम पे है। यू आर नॉट एडेड, जस्ट मेल मी, जो भी प्रॉब्लम है क्लासरूम की अटेंडेंस की, मेल कर दो, ठीक है। मैम हमारी भी अटेंडेंस मैम लास्ट क्लास की नहीं मिली। एक हफ्ते बाद याद है, अब तो नहीं मिलेगी। अगर उसी दिन उसी टाइम याद बोलते तो आई वुड हैव गिवन यू, ठीक है। अगर आपकी अटेंडेंस रह जाए तो जस्ट आफ्टर क्लास आप मेल कर दोगे, ठीक है। मैम ऑनलाइन किसी को भी नहीं मिली थी। सॉरी, मैम ऑनलाइन वालों को किसी को भी नहीं मिली अटेंडेंस लास्ट वीक की। क्लासरूम में हो आप सब लोग? यस मैम। अच्छा, बट आई हैव अनाउंस्ड योर नेम जब मैं अटेंडेंस ले रही थी तो। चलो, जिसका भी अटेंडेंस का प्रॉब्लम है वो आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चंस नोट कर लिया आप लोगों ने? स्पर्श, यू कैन स्टॉप स्क्रीन शेयर, ठीक है, थैंक यू। Okay, ma'am. So I'll just mark your attendance.
attendance please. Shivam Agarwal. Roll number 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Present, ma'am. Ma'am, can you take the names, please? Priya Jain. Okay. Ritvik, Athar, Dhruv, Kamya, Mahiman Jain. Okay. Rishabh. Okay. Muskan, Vaurangi, Rishita, Present, ma'am. Aviral. Okay. Anjaneya. Okay. Adrika, Nena, Prashant, Present, ma'am. Ruchi, Present, ma'am. Harshvardhan, Present, ma'am. Harshvardhan Goyal. Yes, ma'am. Present. Okay. Anishka, Vasu, Harshit Chopra, मैम हर्षित चोपड़ा प्रेजेंट. Tanya, Apurva, Parth, Swati, Aditya. Present, ma'am. Aditya. Okay. Kashish, Bhav Goyal, Ayush, Yash, Anand, Shaurya, Kartik Gupta, Vanshika, Aman, Vaibhav, Ansh, Sarthak, Jaya, Yuvraj, Karan, Present, ma'am. Parit Prerit. Okay. Then Tanisha, Shivam, Saket, Advait, Amol, sorry. Vidhi, Present, ma'am. okay. Lakshita, Aman, Vanshika, Present, ma'am. Tanya, Present, ma'am. okay. Ojas, Ojas present, ma'am. okay. Ayush, Present, ma'am. okay. Riya Garg, Present, ma'am. Ayush and Riya, okay. Surya, okay. Sparsh, Present, ma'am. Suyash, Shulin, Present, ma'am. Samriddhi, सब आदमी की तरफ. Rishabh, Present, ma'am. Rohit, Present, ma'am. ठीक है. Just wait a second. एक बार काउंट करो, कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करो एक बार. आप लोग बैठ जाइए. ठीक है. That's all for today.